Respected students, welcome back everyone. ठीक है, today's video is about logical DAX function. ठीक है, in which the most powerful logical DAX function is if you all know that. ठीक है, so this is the most important interview question they are asking in interview, and in real time projects if logical DAX function is 100%, 200%, 500%, it is used only. Interview तो they are going to ask, but in real time projects also we are going to need this if logical DAX functions. ठीक है, which one is the most powerful DAX function among all? It is calculate, but when it comes to logical DAX function, if is the most powerful. ठीक है, so now let's start with the video. First of all, I will tell you one more thing, that we are going to take four scenarios. ठीक है, one is related to time, means date, the other is related to target, then one concatenation merge is there, then one fourth scenario which is there, which is the most important, and you will never find anything related to it on internet, but stay till end, the fourth one is really very helpful. ठीक है, so before starting the video, make sure you are subscribing and pressing bell icon for all upcoming videos, and follow us on social media, especially Instagram and Telegram. All the links are given in our description box. So now let's properly start with the video. Four scenarios we are going to take, and practically I am going to explain each and everything. ठीक है, so the first scenario was related to time. So what we are going to do, for example, now we are having this date column. ठीक है, we will collapse this. We are having this date column. You are able to see, right now it is in DDMMYY, means our Indian format. Date, month, year, means 1st July 2020, 2nd July 2020, everything. So now first what we will create, we will create date of, we have to find whether this date was of weekday or weekend. ठीक है, weekday or weekend. With if logical DAX function we can do, but first what we have to do, day of week we have to find. ठीक है, फिर हमारे पास ये वीकडे का एक DAX फंक्शन है. ओके, and then फिर this date column, first we will write date. See, after weekday we have to pass the date. ठीक है, तो ये डेट कॉलम आपको यहाँ पे पास करना है. ठीक है, एंड उसके बाद देन 2. इसकी साइज थोड़ी, आई विल रिड्यूस लिटिल बिट ऑफ साइज. हाँ, ओके. सो डे ऑफ वीक वी वर एबल टू फाइंड. देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ 3 4? सी, इन अ वीक there will be 7 days. So now I will show you one thing. July 2020 calendar. See, this first date here it is showing, first July date it is showing 3, means in our project what we have showed, Monday is 1, Tuesday is 2, Wednesday is 3, and Sunday will be 7. ठीक है, Sunday will be 7. So see here it is showing 7 for 5th of July. If you will go here, see 5th of July 2020 is 7. तो 1 जो होगा वो Monday होगा, और 7 जो होगा वो Sunday होगा. ठीक है, like this. Now we have to find whether this date was on weekday or weekend. तो हम यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे. ठीक है, इसको वीकेंड नाम दे सकते हैं, और इफ के साथ तो आपको क्या करना है, डेट देखना है ना, डेट. तो पहले डेट पास करनी है. ठीक है, नहीं सॉरी, डे ऑफ वीक. हमने डे ऑफ वीक बनाया ना, डे ऑफ वीक बनाते वक्त डेट यूज किया था. हाँ, तो डे ऑफ वीक के बाद आप ग्रेटर देन 6 लिख सकते हैं, एंड देन weekend comma weekday. Mostly use first alphabet as capital. ठीक है, तो ये देखिए, if logical, with the help of if logical DAX function you were able to extract, you were able to find whether this 1st July 2020
वेदर इट इज वीकडे और वीकेंड। ठीक है, तो फिर यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं और वीकेंड पे आप देख सकते हो। और फिर आपके प्रोजेक्ट में यहाँ पे रिपोर्ट बनाते वक्त अगर आपको जैसे भी इफ यू आर इन नीड ऑफ दैट थिंग, इफ यू वांट टू शो दैट थिंग, इफ योर क्लाइंट बिजनेस इज सेइंग और एज पर प्रोजेक्ट जो भी आपको लॉजिक है, देन यू कैन यूज दिस थिंग। ओके, क्लियर ऑल फिल्टर। This was the first thing. Now, second thing we will check here. If we are having target, okay, then if logical DAX function total, let's say budget, if it is greater than let's say 10 lakh, and then completed, comma not completed. तो यहाँ पे we will take one table visual, ठीक है, with this table visual. लेट्स पास फर्स्ट टोटल बजट। देखिए रियल टाइम प्रोजेक्ट में लगता है, मैं आपको दिखा बता रहा हूँ प्रॉपरली। एंड देन फिर अभी जो हमने टारगेट बनाया वो, ठीक है, एंड लेट्स सी ऑन सिटी और कंट्री। कंट्री देखते हैं, चलो। हाँ, सो सी दिस वे इन रियल टाइम प्रोजेक्ट वी हैव टू शो दिस थिंग। आई बात समझ में? अर्जेंटीना का बजट क्या है? 28 लाख 27,500 मीन्स 2.8 million। ठीक है, विथ क्लाइंट, इफ योर क्लाइंट इज ऑफ फॉरेन वी स्पीक इन मिलियन बिलियंस ओनली मोस्टली। ठीक है, 2.52 मिलियन। तो ये टारगेट कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो देन फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये जो नॉट कंप्लीटेड है ये हम दिखा रहे हैं, और ये कंप्लीटेड, और ये जो है आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, so see, this is the second scenario where if logical DAX function is used. First was that we have extracted weekend and weekdays from our date column or date table. ठीक है, second was we were having total budget, market value, sales revenue जो भी है on basis of country or on basis of any username is there or account number is there, you can find threshold आपको पास करना पड़ेगा of 10 lakh, 1 crore, whatever your client is saying, if on what basis he wants to see, and whether it is completed or not completed। ठीक है, ये चीज है। now coming to the fourth scenario, sorry third scenario। थर्ड सिनेरियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू कंकैटिनेशन, मर्जिंग ऑफ टू कॉलम। ठीक है, यहाँ पे वी विल गिव इट अकाउंट details। Okay, we are already having account details, so account details 2 we will pass here। And if we want to concatenate two columns, in that case how we will write? If is blank है and for example account name है ना, we are having account name and account number। see, we are having account name and account number and we have to concatenate those both columns। see, this account name and account number। ठीक है, so I am passing now account name, then bracket close, comma, here important, here also comma, account name, then and then account number, bracket close। ठीक है, this is table and account details। see, we were able to concatenate these columns of account name and account number।
In our Power Query video, Power Query editor tutorial number 1 video, I have shown you how we concatenate that in our Power Query. But यहाँ पर भी हम Power BI डेस्कटॉप में भी DAX के संग, if logical DAX के संग we can do this. ठीक है, see, okay. And what is this dash? This is this dash. If we have to pass more spaces, you can do that also. ठीक है, see now here. Okay, and for example, if you have to pass here something, now let's see AA, for example, now you can see here C. ठीक है, so mostly we use hyphen only. So this was the third scenario. First was of weekday, weekend. Second was of this threshold or target what we have. If we want to check on what threshold. The third is regarding concatenation. And now the fourth one, the most important. पहले तो स्लाइसर जो है और पावर बीआई का कैविएट है वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर वो फोर्थ सिनेरियो में आपको प्रॉपरली उसका डैक्स मतलब इफ लॉजिकल डैक्स फंक्शन के संग कैसे यूज करते हैं वो मैं बताता हूँ. ठीक है, शिफ्ट के संग इसको यहाँ पे लेंगे. ठीक है, नाउ सी दिस इज आवर स्लाइसर एंड हमने डेट पास की. ठीक है, तो अभी ये बिटवीन है, इसको ड्रॉप डाउन वी विल डू इट ड्रॉप डाउन. ठीक है, ऑल्सो वी विल डू ऑन डिसेंडिंग. कभी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट में डिसेंडिंग पे होता है. ठीक है, सो दैट जो लेटेस्ट डेट है, न्यू डेट है, वो दिखे. ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज इसमें, अभी 21 सितंबर 2021 तक यहाँ पे डेटा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल 18 सिलेक्ट किया. ओके, तो ये जो पेज है, अज्यूम दैट वी आर हैविंग पावर बीआई रिपोर्ट ऑफ दिस वन पेज डैशबोर्ड, क्लाइंट को हमने दिया है, वी हैव गिवन दैट. ठीक है, 18 9 पे सिलेक्टेड है, या फिर हम लेटेस्ट पे ही लेते हैं, 21 पे ही करते हैं. ठीक है, 21 पे ये सिलेक्टेड है. ओके, बहुत प्रॉपरली सुनो ये चीज, बहुत प्रॉपरली. ठीक है, आज ही हमने इसको पब्लिश किया. देन इसमें स्केड्यूल रिफ्रेश तो चालू है, डेटाबेस टीम डेटा डाल रही है, स्केड्यूल रिफ्रेश है, इसमें डेटा इंसर्ट होते जा रहा है. 10 दिन बाद यहाँ पे क्या डेट होगी, 30th होगी. बट आपका जो स्लाइसर है वो 21 पे ही सिलेक्टेड होगा. अगर यहाँ पे 10 दिन बाद इफ द 30 सितंबर डेट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड, इट विल शो टिल 13, बट हियर डाउन योर स्लाइसर विल बी सिलेक्टेड ऑन 21. ठीक है, अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, आप ऐसा समझो कि आज आपने ये पब्लिश किया 21 पे, सॉरी हाँ, वर्क करके पब्लिश किया. फिर पावर बीआई सर्विस में डेली शेड्यूल रिफ्रेश चालू है, एक एक दिन का डेटा आते जा रहा है. 10 दिन बाद आप जब रिपोर्ट देखोगे, ठीक है, आपका जो रिपोर्ट है वो 30 सितंबर पे पूरा ये हुआ होता है, चेंज हुआ होता है. बट आपका स्लाइसर जो है ना, ये स्लाइसर में ये बाय डिफॉल्ट 21 ही सिलेक्टेड होता है. आपको मैन्युअली जाके या क्लाइंट को मैन्युअली जाके 30 सितंबर ही नीड्स टू सिलेक्ट, देन ही विल बी एबल टू सी हिज रिपोर्ट ऑन 30 सितंबर. ठीक है, बट वो पड़ा रहेगा 21 पे ही. तो इसको ओवरकम कैसे करने का, तो क्या है ना, कभी भी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो टेक्स होता है ना, टेक्स, अभी इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है डेट. टेक्स अगर होगा ना स्लाइसर का, तो ऑटोमेटिकली अपर जो हाईएस्ट होता है या जो लेटेस्ट होता है उस पे सिलेक्ट करता है. तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक हम डैक्स एक कॉलम बनाएंगे. ठीक है, इसका हम कॉलम नेम देंगे न्यू डेट, लास्ट डेट, लेटेस्ट डेट, जो भी आपको पसंद आए वो दे दो. ठीक है, देन मैक्स, हमको मैक्स चाहिए ना, मैक्स के बाद देन फिर डेट. ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे न्यू डेट ही बोलेंगे. न्यू डेट, जो भी आपको सिनोनिम यूज करना होगा वो कर सकते हैं. फॉर्मेट क्यों, क्योंकि आपको कौन सा फॉर्मेट, डी डी एम एम वाई वाई जो भी, उस वजह से हम फॉर्मेट यूज करते हैं, वो पास करना पड़ेगा ना आपको, यू हैव टू पास दैट. ठीक है, एंड उसके बाद कॉमा
देन फिर DDMM सॉरी स्लैश स्लैश MM/YYY ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अभी ये स्लाइसर कॉपी करता हूँ, ये पेस्ट यहाँ पे, एंड आई विल रिमूव दिस एंड आई विल यूज दिस न्यू डेट। तो ये क्या होगा, पहले तो ये न्यू डेट वी नीड टू सॉर्ट इट ऑन डेट कॉलम, ठीक है, सो दैट इट विल शो प्रॉपरली। नाउ इट विल शो प्रॉपरली ऑन डिसेंडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा न्यू डेट है, यहाँ पे आपकी लेटेस्ट डेट क्या है, 21 सितंबर है और 20 है, देखो 19 20 21, यहाँ पे कैसे 19 20 न्यू डेट है, न्यू डेट। देखिए ये जो कॉलम बना है ये डेटा टाइप टेक्स्ट डेटा टाइप पे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका फायदा क्या है कि अगर आपने आज ये रिपोर्ट बना दिया, ठीक है, और आपने इसको 21, इफ यू हैव पब्लिश दो दैट रिपोर्ट ऑन 21 सितंबर, आफ्टर 10 डेज पावर बीआई में 30 सितंबर इसमें इंसर्ट होगा, सब होगा, नो डाउट डेटा 30 सितंबर तक पूरा रिपोर्ट अपडेट वगैरह होगा, बट आपने 21 पे क्लिक करके इसको पब्लिश किया था उस वक्त, तो पावर बीआई सर्विस में बाय डिफॉल्ट ये ही क्लिक मतलब सिलेक्टेड होगा। ये जो अपना जो क्लाइंट है उनको मैन्युअली जाके लेटेस्ट डेट ऐसा स्क्रॉल, फॉर एग्जांपल ऐसा सोचो कि 6 महीने बाद रिपोर्ट देख रहे हो और आपने जून महीने पे उसको क्लिक करके पब्लिश करके मतलब सेव करके पब्लिश किया था, और 6 महीने काम वगैरह कुछ नहीं आपने उस पर किया, क्लाइंट ने भी देखा नहीं है, तो उसको पूरा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा, ही नीड टू स्क्रॉल अप, ठीक है, एंड देन ही नीड टू फाइंड द लेटेस्ट डेट। बट यहाँ पे इस केस में बाय डिफॉल्ट डेटा कितना लोडो, आप उस रिपोर्ट पे कितना काम किए लेटेस्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये न्यू डेट पे ही वो सिलेक्टेड रहेगा। एंड वेन एवर क्लाइंट विल गो ऑन योर एम्बेडेड लिंक इन पावर बीआई सर्विस, ही विल फाइंड द रिपोर्ट कंप्लीटली ऑन दैट लेटेस्ट डेट ओनली, जो भी है वो 19 दिसंबर वगैरह जो भी होगा वो। ओके, दिस इज द रीजन, ये डैक्स हमने इफ लॉजिकल के साथ इफ डेट का मैक्स लिया है, उसको न्यू डेट दिया है, उसको न्यू डेट नाम दिया है और फॉर्मेट DDMM/YY, इतना सिंपल है। Okay, so these are the 4 to 5 things which I have told you, which are used in real-time project with if logical DAX function, and you can also tell this in interview also. The first was related to weekend weekday, ठीक है, द सेकेंड वॉज रिलेटेड टू टारगेट, ओके, टारगेट का मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इफ टोटल बजट इज मोर देन 10 lakh, whether it is completed not completed, we can see on basis of country, account name, username, anything. Third was concatenation of 2 columns, account name, account details like this number, एंड ये फोर्थ बहुत ही अलग है, ये आपने कभी भी सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा इंटरनेट पर, बट ये चीज है, ठीक है, कि if the data is getting daily inserted and even if client sees report after 5 6 months, whenever he will click on that drop down he will able to see on the new date, last date, latest date, he doesn't need to manually scroll and click on that latest date, ठीक है, तो ये 4 to 5 थिंग्स मैंने आपको बताई है इफ लॉजिकल डैक्स फंक्शन की, ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, इफ एनी काइंड ऑफ डाउट यू आर हैविंग मेक श्योर यू आर कमेंटिंग, within 1 hour 2 hours I will reply you, and if you are new on our channel make sure you are subscribing, pressing by bell icon for all upcoming videos, and follow us on social media especially Instagram and Telegram, and if you like the video like it and share with your friends those who are giving interview, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।